ایک زبردست کپل سے آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں. بڑا پولیٹیکل کپل ہے. ایک تو جن کا تعارف میں اس طریقے سے کرواؤں گا کہ 2018 کے جو انتخابات تھے انہوں نے لاہور کے حلقہ جو تھا لاہور کا 127 سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا, کامیاب نہ ہو سکے, لیکن یہ ناکامی ان کی راہ میں حائل نہیں ہوئی. اپنی عوامی خدمت اور محنت انہوں نے جاری رکھی اور کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا اور انہیں اپنا معاون خصوصی برائے فوڈ سیکیورٹی مقرر کیا. جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں ان کی اہلیہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی. ان دونوں سے گفتگو کرتے ہیں, بات کرتے ہیں رمضان اور سیاست, یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چل رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بالکل بہت مبارک ہو چیمہ صاحب. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ موضوع سمجھیں گے کہ یہ فوڈ سیکیورٹی کیا ہوتا ہے اور آپ کا جو یہ ٹائٹل ہے اس میں آپ کریں گے کیا, مطلب وہ جو آٹا چینی کا بحران ہے وہ نہیں آئے گا یا کچھ اور ہے, یہ ہم آپ سے سمجھیں گے. مسرت صاحبہ یہ بتائیں سب سے پہلے کہ پہلے پی ٹی آئی میں کون شامل ہوا تھا؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے. لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ میں آئی تھی اور میں ان کو لے کے آئی تھی. ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ بیگم جو کر رہی ہوتی ہیں پھر آدمی جو ہے وہ منع نہیں کر سکتا. جمشید نے پہلے جوائن کی تھی, تھوڑے سے ٹائم کے بعد فیو منتھس لیٹر میں نے پھر پارٹی جوائن کی. تو آپ کو کیا خیال آیا, مطلب اب انہوں نے کر لی تھی گھر میں ایک ہو گیا تو ٹھیک ہے؟ ایکچولی یہ خیال ان سے پوچھیں, ان کو آیا تھا. انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی کنسٹیچوئنسی کو میں دیکھوں گی, یہ بزنس کریں گے, شام میں یہ اپنے حلقے کو دیکھیں گے. تو یہ وقت نے ثابت کیا کہ میں بہت اچھی ورکر ہوں اور پھر پارٹی نے مجھے ان سے اچھی ورکر ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اس کے تو ان کا تو حتمی فیصلہ خاص آپ کریں گے نا. ہاں جی, ذرا آپ بتائیں یہ معاملہ کیا ہوا؟ بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں دو تین شوق ہیں جی میرے. ایک تو میں بزنس کرتا ہوں, شوق نہیں, یہ تو ضرورت بھی ہے, یہ تو پروفیشن ہے. پڑھنے لکھنے کا مجھے شوق ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے لیبر ورک پہ لگا دیا. آپ کہہ لیں عوامی خدمت کا بھی ہے. تو میں سمجھتا حلقہ میرا نیا تھا اور ٹف تھا. شمالی لاہور مشکل ہے یہ, مطلب آپ کہہ لیں کہ پہلے پیپلز پارٹی گڑھ تھا, وہاں سے ٹوٹا تو نون کی طرف چلا گیا, تو وہاں ذرا مقابلے زیادہ کلوز ہوتے ہیں. سو مسرت سے میں نے کہا, ریکویسٹ کی کہ میرے ساتھ کو ٹائم دیا کرو. تو یہ ٹائم دے رہی تھی تو اس کی نا اسپیچز وغیرہ یا آپ کہہ رہے ہیں اس کی جو آرگنائز ایفرٹس ٹھیک تھیں. تو میرے پاس ان دنوں پنجاب کی صدر تھیں سلونی بخاری مرحومہ, وہ آئی کہ ان کو ہمیں دے دیں تنظیم. اچھا. تو میں نے کہا جی کیا کریں گے آپ؟ کہتے ہیں ہمیں نائب صدر بناتے ہیں لاہور کی. میں نے کہا پھر اس کو سینئر نائب صدر بنا دیں آپ. کہنے جی ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. تو شی بیکیم سینئر نائب صدر اینڈ آنورڈ. پھر آپ کہہ لیں کہ مطلب یہ تو پارٹنرشپ اس طریقے کی ہے نا کہ مطلب ظاہر ہے دونوں جب مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک پارٹنر. لیکن میں کوئی ایسا الیکشن نہیں آیا یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی یا کوئی ایسی موبلائزیشن نہیں آئی بائی الیکشن جہاں بھی ایز اے کپل جاتے. ویسے آپ دونوں کی پارٹنرشپ بنی کہاں پر تھی جو زندگی والی پارٹنرشپ تھی, یہ جو ہلکے سنبھالنے تھے, یہ اس سے الگ والی بات ہے. بیسیکلی انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا تھا جی. اچھا. انہوں نے اس کے پیسے نہیں دیے. واہ واہ بھائی واہ, پیسے نہیں دیے. جی نہیں, میں بل دے رہی تھی, دیٹ واز آفیشیل لنچ. اچھا. تو ہماری طرف سے یہ انوائٹڈ تھے, بل میں نے دینا چاہا تو مجھے بعد میں پھر وہ سمجھ آئی کہ انہوں نے اتنا اصرار کیا. فوجی یاما جاپنیز ریسٹورنٹ اواری کا ان کا فیوریٹ, تو بل ویسے تھا بھی بہت زیادہ. اچھا ہی ہوا انہوں نے پے کر دیا. تو میں نے کہا ہم لڑکی رکھ لیتے ہیں. تو یہ وہ دعوت تھی. تو دعوت سوچیں, وہ دعوت مجھے بعد میں پتا چلا. پہلے تو میں اتنا امپریس ہوئی کہ از اے نائس مین, جینٹل مین, کہ انہوں نے دیکھو بل اچھا ہی ہوا دے دیا. انہوں نے بل نہیں دیا, بل کے ساتھ ساتھ دل بھی دے دیا. دل بھی دیا, وہ بعد میں پتا چلا. لیکن یہ کیا ہوتا, اب دیکھیں وہ بل اور دل کی کہانی تو الگ ہے, لیکن پارٹی اور سیاست کی کہانی الگ ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہم نے بول دی, اب ناظرین کو پتا چل گیا. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر دل اور بل تو آپ نے دے دیا, لیکن بعد میں اگر یہ تحریک انصاف کی یہ نون لیگی کٹر نکلتی تو پھر کیا ہوتا؟ میری فیملی تھی نون میں. یہ بیسیکلی آپ کہہ لیں فرینکلی میں بتاؤں, ہم کافی دیر بیٹھے, ڈسکشن ہوئی. تو ان دنوں شہباز شریف صاحب وہ کافی پنجابی میں کہہ لیں رنگ بازی ٹھیک کرتے ہیں. اچھا. تو میں ان کا کرٹکس تھا کہ میں پہلے 4 دورے جو انہوں نے کیے ایز اے بزنس مین, میں ان کے ساتھ تھا. ٹرکی کا, چائنا کا, اس دن بڑی پالیٹکس ڈسکس کی ایویں ہی نا, تو میری اپروچ ٹھیک تھی. میں نے دیکھا کہ یہ بندہ بالکل رنگ باز, میرا خیال تھا کہ شاید ٹھیک ہے, لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بالکل ایسے نا جیسے وہ رنگ باز ہے. تو ہماری ڈسکشن ہوئی تو اس کی رائے مجھ سے ملتی جلتی تھی. اچھا. تو مجھے سمجھ میرے لیے تھوڑا حیران کن تھا کہ نارملی عورتوں کی پولیٹیکل سائنس اتنی اچھی نہیں ہوتی, تو یہ میری توقع سے تھوڑا ایکسیڈ کر رہی تھی. اچھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کام چل جائے. انہوں نے کہا کہ رائے ملتی ہے تو آپس میں بھی ملنا چاہیے. نہیں, پولیٹیکل سائنس اس کی ہے نا, مطلب میری توقع سے تھوڑی زیادہ ذہین تھی. گڈ. بیسک یہ تھی کہ میری توقع تھوڑی زیادہ ذہین تھی, تو میں بلکہ کافی زیادہ ذہین تھی. میں نے کہا کام چل جائے گا. تو میں ایسے کہتا ہوں کہ بیسیکلی میں نے کہتی اکثر میں شاپنگ پہ نہیں جاتا, میں چیزیں نہیں خریدتا,
तो मुझे कोई टाइम मिले, कभी मेगा मॉल में चले जाएं, कहीं भी जाएं, मैं किताब खरीद के पढ़ना शुरू कर देता हूं। ये बुक शॉप में जाएंगे, दुनिया के किसी मॉल में आप हैं, हम एयरपोर्ट में किताबें, मैं किताब में या आप कह लें कि म्यूजियम, ये दो जगह किसी भी दुनिया में इलाके में जाऊं। हाँ, अच्छा बाहर भी यही प्रॉब्लम है, अकेले शॉपिंग करती हूं। तो मैंने कहा कि तो ये कहती है आपने फलां चीज़ भी सिलेक्शन आपकी गलत है, फलां भी गलत है। मैं कहता ये तो मेरी ठीक है ना सिलेक्शन, ठीक है, तुम्हारी गलत है, तुम्हारी शायद उतनी अच्छी नहीं है, मेरी सिलेक्शन तो बेहतर है। तो वहाँ गई थोड़ी खामोशी से प्लेजेंटली चुप कर जाती है। अच्छा, तो आपको तो इनकी जो पॉलिटिकल सेंस है वो अच्छी लगी, आपको क्या पसंद आया इनमें? क्या पसंद आया? बल्कि यूं पूछूं, जमशेद जो है ना, अगर मैं ये ऑनर बता रही हूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि मैं अपना और इनका कंपैरिजन करूँ तो ये मुझसे बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है, ये सच है। नंबर 1। नंबर बिल दे दिया था उन्होंने, वरना तो ऐसी सूरत हाल में कोई छोड़ जाए तो फिर बहुत मुसीबत पड़ जाएगी। ना देते तो फिर शायद क्या। बट चलिए वो तो एक लाइटर नोट पे थी। अगर मैं ये कहूँ, ये वैसे मैंने इनको कभी इनके मुंह पे नहीं बोला कि अभी आप इस तरफ मुंह करके हाँ, ये परफेक्ट एक होता है ना कि जैसे जिसको जिस रिश्ते में जिस उसमें देखें, सांचे में देखें ना, ही इज़ परफेक्ट मैन। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ही इज़ अ बेस्ट सन, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट फादर, माशाल्लाह। जो अल्लाह ताला ने इनको ब्लेस्ड इन अ वे कि अल्लाह ताला के इतने, ही इज़ अ सक्सेस स्टोरी इन हिज लाइफ। क्योंकि हर पहलू में कोई कमी रह जाती है। हाँ। कोई देखें, आम किसान के बेटे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ा, कॉर्पोरेट में गए, वहाँ टॉप किया, फिर अपना बिजनेस में अल्लाह ने वहाँ ब्लेस किया, पॉलिटिक्स में भी फाइनली जो ये डिज़र्व करते थे, इन्हें दोनों दफ़ा जो कंस्टिट्यूंसीज मिली थी ना लाहौर की, टफेस्ट, एंड इन्होंने खान साहब की बात पे मैं थोड़ी सी चूं कर लेती हूँ। मुकाबले पे कौन थे आप? मरियम नवाज थी। अच्छा जी। तो खान साहब का ये ही सच है नाइस, ये अल्लाह पे छोड़ते हैं और कहते हैं कि ठीक है ये फैसले अल्लाह की तरफ से होते हैं। जब हल्का में इलेक्शन से 30-40 दिन पहले मिला था, सबसे टफ हल्का था, मरियम ने 7-8 सर्वे करा के वो चूज किया था अपने इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा था कि ये गलत हुआ है, ये ज्यादती हुई है। तो खान साहब से मैं गिला करने भी पहुंच गई। हाँ, दोनों को फिर उन्होंने हमें बुलाया, ही वो सेटिस्फाइड। इन्होंने कहा कि ठीक है, ये हमेशा ये इनकी खूबी मैं इसलिए समझती हूँ कि ये इंसानों से ज़्यादा इनका ईमान मजबूत ज़्यादा ये इसलिए हैं कि अल्लाह पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि जो रोड मैप उसने दिया है ना उस पे चलते जाएं, उसका प्लान सबसे बेहतर जो अल्लाह का प्लान है वो दैट इज़ बेस्ट प्लान। तो माशाल्लाह इनको अगर आप देखें कि मेरी फैमिली में भी माशाल्लाह नाउ ही इज़ एन आइडियल मैन। स्टाफ भी इन्हीं को पसंद करता है क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, बच्चे भी इन्हीं को पसंद करते हैं। अच्छा, तो वो इनके साथ ज़्यादा क्लोज हैं बच्चे? बहुत ज़्यादा। कभी आप बच्चों के मैं कुछ शोज भेजूंगी जो ईद पे रिकॉर्डिंग फैमिली के होते, तो आप देखें मेरे बेटे मेरा करते क्या है। अच्छा तो ये बताएं कि अक्सर तो खवातीन को ये गिला होता है। आई एम ब्लेस्ड इन फैक्ट कि अल्लाह ने मुझे, मेरे लाइफ पार्टनर जमशेद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब खवातीन को ये गिला होता है जब मर्द सियासत में होते हैं उनके हस्बैंड्स, तो वो कहती हैं कि टाइम शाइम कोई नहीं देते। अब इधर तो आप भी सियासत में हैं, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं? शिफा, एक तो ये है कि ही इज़ अ गुड मैनेजर, मैनेजमेंट इनकी अच्छी है, इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में। तो उसमें ये होता है कि क्वालिटी टाइम बहुत कम हो गया है, उसमें मेरा गिला होता है। उसमें पहले ये क्या, पहले हमें क्वेश्चन निकल आता था, ये जब भी अपने बिजनेस ट्रिप पे भी जाते हैं ना बाहर, तो मुझे साथ ले जाते हैं ट्रैवलिंग में, चाहे ये कॉन्फ्रेंस में होते हैं, उस दौरान मैंने शॉपिंग कर ली, बीच में फिर भी टाइम निकल आता। अब तो कोविड की वजह से हम वो भी नहीं जा पाते, तो अब मुझे बहुत ज़्यादा होता तो है। लेकिन चूँकि हम लोग बाय चॉइस हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ कह लें कि एडजस्ट इसलिए किया हुआ है कि देखें ही इज़ टू बिजी। बिजनेस भी माशाल्लाह बहुत बड़ा फैला हुआ बिजनेस है, उसको देखना, फिर उसके बाद हल्के को देखना, तो फिर इनको पढ़ने पढ़ाने का भी शौक है, रिसर्च भी। तो मुझे वैसे मेरे समय टाइम कम आता है, तो अब मैंने एडजस्ट कर, जो बच जाता है वो आ जाता है आपके। हाँ, थोड़ा बहुत। अब वो हम चाह रहे थे कि जरा अब आपका जो पोर्टफोलियो है आपके पास, वो फूड सिक्योरिटी में बेसिकली काम क्या होता है जो करने वाला होता है, और आप किस तरह से देखेंगे, क्या ये वो बुहरानों से रिलेटेड है या नहीं? बेसिकली एक ना छोटा सा वाक़या आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। कन्फ्यूशियस, जी ये आप कह लें कि सबसे बड़ा फ़िलासफ़र समझा जाता है चाइना में। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा, ऐसा अगर पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये यूरोप में तो आप कह लें अरस्तु या दूसरे आप कह लें प्लेटो वगैरह, उनसे बहुत आगे किसी। जी। तो कन्फ्यूशियस बैठा था, सामने शागिर्द बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि उस्ताद एक मुल्क के लिए, रियासत के लिए रियासत कैसे बनती है, क्या ज़रूरी है? उसने कहा रियासत के लिए ज़रूरी है एनफ आर्म्स, असला काफ़ी हो, सही है, हथियार हों, एनफ फूड भी सही है, और a trust between the people and the ruler,
ठीक, ये 3 चीज़ें हों तो रियासत बन जाती है। उन्होंने कहा कि अगर 3 पूरी ना हो तो उसने कहा देन ड्रॉप द आर्म्स, ड्रॉप द आर्म्स, असला हटा दो, ठीक, मतलब फूड और ट्रस्ट। उन्होंने कहा अगर 2 भी ना हो तो उन्होंने कहा देन ड्रॉप द फूड, देन ड्रॉप द फूड। ट्रस्ट होना जरूरी है, ट्रस्ट बिटवीन द पीपल एंड लीडरशिप जो है वो रहना चाहिए। सो इसमें इसकी अगर अगली शक्ल देखें तो ग़ज़वा हंदक के मौका पे जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट अपने से कपड़ा उठाया, साहबा ने एक पत्थर बांधा, 2 बांधे थे। उस दिन अगर 2 पत्थर ना होते तो हंदक ना बनती और मदीना फतह हो जाता, रियासत ना रहती। बिल्कुल, वो जो 2 पत्थर थे, लोगों को पता लगा कि हमारा लीडर जो है, हमारा लीडर जो है वो हमारे जैसा है, बल्कि हमसे बहुत आगे है, बिल्कुल, मतलब हमसे ज़्यादा भूखा है और वो सब्र हमसे ज़्यादा साबर है, लिहाजा उन्होंने हंदक खोदना जारी रखी। सो बेसिकली जब फूड सिक्योरिटी की या रियासत के कायम करने की बात आती है तो खुराक वहाँ आती है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी है कि इसके बगैर मुल्क सेफ नहीं होता। जब आप कह लें कि रियासत टूट जाती है अगर वहाँ पे खुराक पूरी ना हो, तो इसके बेसिकल 3 एलिमेंट आगे। लोग समझते हैं कि खुराक का होना काफ़ी है, खुराक का होना काफ़ी नहीं होता। खुराक में 3 चीज़ें, एक है कि खुराक मौजूद हो, अवेलेबल हो, दूसरा कि उसकी प्राइस अफोर्डेबल हो, सही, और तीसरी है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो। सही, बिल्कुल। ये जो क्राइसिस हैं, जहाँ जहाँ लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है वहाँ क्राइसिस होता है, फूड क्राइसिस होता है। और दूसरा जहाँ आप कह लें कि रेस्टलेसनेस हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू, जहाँ जंग लगी हो, तो वहाँ आप कह लें कि फूड सिक्योरिटी का इशू बनता है। तो इस डोमेन में प्लान्स क्या हैं आपके? तो प्लान बेसिकली इसमें इसको हमारे यहाँ भी इस वक्त हमारा इशू ये है फूड सिक्योरिटी में, चीमा साहब का बहुत एक्सपीरियंस है, बिल गेट्स फाउंडेशन में भी इन्होंने अच्छा, तो हम बेसिकली आप कह लें पूरे एशिया के लिए, मैं साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ बिल गेट्स फाउंडेशन में। तो फूड सिक्योरिटी में बेसिकली इसकी जो स्ट्रेटजी है वो 3 प्रांग्ड है। पहली ये कि आप खुराक ज़्यादा उगाएं, ज़्यादा बनाएं, नंबर 1। दूसरी है इसमें कि खुराक को सस्ता करें ताकि अफोर्डेबल हो, बिल्कुल। और तीसरी ये है कि जहाँ जहाँ कोई इंच है, इसमें जस्ट आपको एक एग्जांपल से समझ लगेगी कि दुनिया में कुछ 780 मिलियन टन गंदम पैदा होती है, लेकिन सिर्फ 11 या 12% ट्रेड होती है। अच्छा। बाकी जहाँ उगती है वहीं खाई जाती है। चावल दुनिया में सिर्फ 9% ट्रेड होता है, बाकी जहाँ उगता है वहीं खाया जाता है। 400-500 मिलियन टन जहाँ उगता है वहीं खाया जाता है। सो पेरिशेबल दुनिया में 1130 मिलियन टन सब्जी उगती है, मोस्टली जहाँ पैदा होती है वहीं खाई जाती है। सो सिक्योरिटी है ही स्टेट की ये कि वो अपनी सब्जी अपनी खुराक को 80% एग्रीकल्चर अपना उगाओ, अपना खाओ। सो यहाँ पे ये एक तो हो गया अफोर्डेबल, उगाना और फिर उसको अफोर्डेबल, ज़्यादा उगाना, अफोर्डेबल रखना, और तीसरी ये कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो। सही। मसलन अगर आप टमाटर बदीन से लेके ऊपर जाते हैं बिशाम में तो वो महंगा हो जाएगा, बिल्कुल, वो टाइमली मिलेगा नहीं, उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी। सो आपने उसको बिशाम में भी उगाना है, गिलगित में भी उसको उगाना है, बिल्कुल, कि पेरिशेबल आप कम से कम वहाँ उगाएं, और आप कह लें कि ग्रेन जो है वो आप लेके चले जाएँ। ये एक तो ये हो गया। दूसरे है कि हमारे यहाँ दुनिया में 2900 कैलोरीज 2900 कैलोरीज पर कैपिटा कंजम्पशन है, बिल्कुल सही। अच्छा, एवरेज जो है हमारे यहाँ है जो 2150, हम दुनिया से 750 कैलोरीज खुराक कम खा रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब है ये हमारा हंगर का लेवल है, माल नरिशमेंट, अंडर नरिश्ड है वो। अंडर नरिश जो हमारे यहाँ लोगों की हाइट कम हो रही है, स्पेशली शैंटी टाउन्स में कम हो रही है। गरीब स्कूलों में आप जाएँ तो वहाँ आपको माओं का कद छोटा नजर आएगा, ब्रेन डेवलपमेंट सही नहीं। और इसमें जो हंगर है, हंगर की डेफिनेशन देखें तो हंगर की डेफिनेशन इट्स बॉडी पेन, इट्स ए पेन। बिल्कुल, जब भी आप वो ले रहे होते हैं उस पेन को खत्म करने के लिए। सो हंगर जो है वो हम हंगरी हैं, बेसिकली हंगरी नेशन है, हम हंगरी नेशंस में से एक नेशन है। सो यहाँ पे उसकी वजह बेसिकली है कि हमें 48,000 मतलब तकरीबन 48,40,000 लोग सालाना बढ़ जाते हैं। इतना छोटे मुल्क होते हैं। फिर हमारे यहाँ दुनिया में जो इशू है सबसे बड़ा, वो ज़मीन लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन मीठा पानी है। दुनिया में मुल्कों में जो मीठा पानी है ये असासा गिना जाता है, नेशनल एसेट गिना जाता है। हमारे यहाँ 1250 क्यूसेक पर कैपिटा मीठा पानी है। दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं वहाँ 2,500 से लेकर 50,000 क्यूसेक पर। ये फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हमारे यहाँ नई ज़मीनें आबाद नहीं हो सकती, वजह ये कि मीठा पानी नहीं है। मीठा पानी होगा तो फिर होगी, लिहाजा हमने थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा उगाना है, और साथ ही हमें
में मौलवियों से डरते हुए कहूँगा कि आबादी को भी कंट्रोल करना है हमने। ये बड़ा ताकि हम 800 कैलोरीज का जो गैप है ये पूरा करें। सो ये इट्स अ बिग चैलेंज, बल्कि चैलेंजेस का मजमुआ है ये एक तरीके से। इस चैलेंज को देखते हुए आप कह लें कि मैं तो आप रेडी हैं इसके लिए? रेडी नहीं, आई वाज फाइंड आउट, मतलब मुझे देखा गया कि मैं पाकिस्तान में दूसरों से बेहतर जानता हूँ इस बात को। सही है। जितने भी सर्वे हुए, जितने भी इंटरव्यू हुए, मतलब इसमें बहुत सारे इंटरव्यू और सर्वे हुए हैं, तो उन इंटरव्यूज के बाद मुझे मतलब जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है उसकी तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल हम तो ये और इंशाल्लाह आई विल डू दैट, इंशाल्लाह। फाइनल कमेंट आपकी तरफ से मैं लेना चाहूंगा कि कौम कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग फ्रॉम अस एंड वी विल एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह। जी मुसरत साहिबा जी, मैं बेस्ट ऑफ लक बोलूंगी कि नो डाउट तो बहुत बड़ा। आपने अभी तक नहीं बोला? नहीं कह दिया। नहीं देखिए, चैलेंज बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि अगर हम ये देखें कि हमारा जो मकसद था वो ये था कि हम आएँ और सियासत बराए सियासत या उहदों के लिए हम आए नहीं थे कि मुल्क में कोई बेहतरी या अपना एक ऐसा इतना हिस्सा डाल दें कि चले ठीक है हमारा भी नाम याद रखा जाए। सो ही इज ऑन इट और इंशाल्लाह ही कैन डू दिस, आई नो दिस। और आप तर्जुमान तो हैं ही फिर? मैं अच्छी तर्जुमानी वैसे इनके कामों की कैसी आपको लगती है इनकी, जब कभी ताबड़तोड़ हमले कर रही होती हैं बैठ के बड़े-बड़े? मुझे अपनी कुछ खूबियों का नहीं पता तो ये बताती है लोग। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आप दोनों का, आप लोगों ने वक्त दिया और सर आपके लिए बहुत सारी कामयाबी की दुआएं हैं, क्योंकि ये मसला हल होगा तो फिर हम एक बेहतरी की तरफ जो है वो हमारा कदम इसी तरीके से शुरू होगा। बहुत शुक्रिया।